Hello and very good morning to all my dear students. Today we will continue the PCR, full wave PCR. In last lecture we have discussed about the two circuits, midpoint, bridge converter, and we have seen the operation of midpoint and bridge converter with R and RL load and understand the waveforms that we are getting from these two circuits. Today we will discuss about the single phase PCR with RLE load. Okay, RLE load. So how the circuit behaves for RLE load we will study in today's lecture. First of all, let's see the circuit. In previous we have only RL load, and in this circuit we have E, constant DC source E, and that's why it is called RLE load. The load is RLE, that is constant DC source in the circuit. In other words, if we say we have a DC motor in terms of load RLE, E will be back EMF of the DC motor. Okay, that will be present when motor runs. Okay, so let's see how it will behave. The very first, when we are going to start the topic, we are discussing this topic for alpha less than equal to 90 degree. Say alpha less than equal to 90 degree, and then we will discuss alpha greater than 90 डिग्री. ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि लेटर ये आपका रेक्टिफायर ऑपरेशन होगा और ये वाला ऑपरेशन आपका एज अ इन्वर्टर होगा. ठीक है, वी विल सी. तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस RLE लोड फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री. तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, सोर्स वोल्टेज, ठीक है, तो इस सर्किट में हमारे पास एक सोर्स ये अवेलेबल है और एक सोर्स हमारे पास ये भी अवेलेबल है जो लोड साइड पे, एंड दिस सोर्स will oppose this source. Means if it is more than this, when capital E is greater than Vs, the thyristors are subjected to reverse bias, and when Vs is greater than capital E, then thyristor will be forward bias because this voltage is neutralized by this voltage. ठीक है, so for turning on the thyristor, it is necessary that Vs should be greater than E. Here in waveform we have a constant DC source E over here, which is cutting the waveform of alternating current at 2 points in a cycle. ठीक है, in positive half cycle it is cutting at 2 points. That is, if we want to turn on the thyristor, then we must choose the value of firing angle so that the angle created by this capital E, which is cutting over these 2 points, say it is theta should be less than alpha. मीन्स अगर आपका थीटा 10 डिग्री है तो आपका अल्फ़ा 11 डिग्री या 12 डिग्री या 13 या 15, मीन्स इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मीन्स आपका थायरिस्टर टर्न ऑन होगा. ठीक है, हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, दैट इज in this stanza we have discussed when Vm sin alpha greater than capital E, T1 T2 will conduct. ठीक है, ओके, अगर इससे ज़्यादा होंगे तभी आपके T1 T2 कंडक्ट करेंगे. सो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो अल्फ़ा होगा वो इस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी जो इनपुट है
I think the term that I have discussed this much, we have already seen for single phase half wave RLE load, where we are saying that is theta 1 is equal to sine inverse Vm by E by Vm. Okay, it is E by Vm. ठीक है, तो थीटा 1 की हमें वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी, थीटा 1 की साइन इनवर्स E by Vm व्हेन E by Vm, और यहाँ से हम थीटा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे. जो थीटा 1 की हमारी जो वैल्यू होगी उससे हम अल्फा हमारा ग्रेटर होगा. ठीक है, we will calculate this and we have seen in single phase half wave RLE load. okay so देखिए यहाँ पर हम जो अल्फ़ा लिया हुआ है वो इससे स्लाइटली ज़्यादा है हमारा यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है. तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, सॉरी this terminal will be positive, that is A positive and B negative. T1 forward bias, T2 forward bias, T3 reverse bias and T4 reverse bias. Okay, the current will flow from A to T1 to RLE to T2 to Vs minus. ठीक है, और हमें इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. कहाँ तक? पाई तक. फिर पाई पे is subjected to reverse bias, but again we have RL load. E is present over there, but we have RL load. Inductor will store some energy and we will get a negative pulse. And फिर पाई प्लस अल्फा पे हम T3 T4 को ट्रिगर करेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलता चला जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. सिमिलरली वी विल हैव current which is very similar to RL load. It is never getting zero. ठीक है, this shows that input current, that is output current, is continuous and the PF of the load is good. Okay, so in this way we will getting V node and I node, sorry I node. Here I is source voltage is described. तो सोर्स वोल्टेज हमारी क्या होगी भाई? जब जब हमारे थायरस्टर्स ऑन होंगे तभी तो हमारा सोर्स कनेक्ट हो पाएगा लोड से. जब हमारा जब हमारे थायरस्टर्स ऑन नहीं होंगे तो हमारा लोड सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएगा. देन व्हेन T1 T2 इज ऑन वी विल हैव सोर्स करंट, व्हेन T3 T4 इज ऑन वी विल हैव सोर्स करंट. ठीक है, इस तरीके से. और ड्रॉप हमारा जैसे हमने पिछली वेव फॉर्म में देखा था. सो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द सिंगल फेज RLE load for full wave, we can easily understand how we are achieving the output voltage and output current. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ये और आउटपुट करंट हमारी ये दोनों हम अचीव कर रहे हैं बाय अप्लाइंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव हेयर एंड हेयर. और हमारे T1 T2 बिहेव कर रहे हैं. एंड कॉन्स्टेंट DC आउटपुट वोल्टेज विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर बिकॉज वी हैव कैपिटल E एट द लोड साइड. सो दिस विल बी आउटपुट वोल्टेज, दिस विल बी आउटपुट करंट, this will be the source current as, and behavior of the source current will depend upon the turning on and turning off, because source हमारा सप्लाई सर्किट में तब एक्टिव होगा जब हमारा थायरिस्टर्स एक्टिव होंगे. बिकॉज if these two and these two are off, then what is the meaning of source? No meaning of the source. Okay, as already capital E is there, so when these two are on, और ये दोनों कब ऑन होंगे? जब हम अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू थीटा से ज़्यादा हो. ठीक है, और हमें सोर्स करंट इस तरीके, क्योंकि हमारा बिहेवियर है यहाँ पे इंडक्टर का, तो करंट ग्रेजुअली राइज करेगी, डिक्रीज़ करेगी, फिर राइज करेगी, फिर डिक्रीज़ करेगी, फिर राइज करेगी, फिर डिक्रीज़ करेगी. इस तरीके से हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी सोर्स करंट बिहेव करेगी. और अगर हम ड्रॉप अक्रॉस द थायरिस्टर की बात करें तो हमें इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पर जब हमारा अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मिली, अल्फ़ा तक हमारा फायरिंग पल्स तक हमें कोई भी पल्स नहीं मिली है, तो ये हमारा ड्रॉप मिलेगा. फिर हमारा ये क्या काम करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट V नॉट विल बी ड्रॉप अक्रॉस द थायरिस्टर विल बी ज़ीरो, एंड फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा
to 2 pi plus alpha, there will be drop across the thyristor T1 T2, and just opposite in T3 T4 that we are achieving over here. ठीक है. So this is all about the single phase full wave PCR for RLE load alpha less than 90 degree. Okay. Now we will discuss alpha greater than 90 degree. Very first, I would like to ask some questions, that what is the main differences that we are all seeing in this waveform and in this waveform. ठीक है. The two basic differences are, look at this V naught. Okay, this is V naught, and look at this V naught. These are the just mirror images of, means the curve we are getting over in positive half, we are getting in negative half. ठीक है. And the load current, if we talk about the load current, it is rising and decreasing, but here it is decreasing then rising, फिर decreasing then rising, decreasing rising. So what is happening over here, it is just reverse or replica of the alpha less than 90 degree. So how it will be operated? Here we have so here we can easily see how it behaves. Let's start. Now if we are talking about alpha greater than 90 degree, then what will happen? The alpha will be, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये 90 डिग्री, तो आपका जो फायरिंग एंगल होगा वो इधर कहीं होगा, इस वाली वेव फॉर्म में इधर कहीं, सॉरी इस वाली वेव फॉर्म में इस साइड में कहीं पर भी होगा. अब क्योंकि हमारा RLE लोड है, तो अब RLE लोड है तो इसकी जो इंटेंसिटी है इसके रिस्पेक्ट में वो इस हाफ में आ जाएगी. ठीक है. तो हमारा जो अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो इससे कुछ ज़्यादा होगी, यानी कि समवेयर ओवर हेयर. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नाउ वी विल हैव अल्फ़ा ओवर हेयर in this cycle over here, and it will start conducting when we are providing gate pulse. T1 T2 will conduct as in normal circuit अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए. ठीक है. तो T1 T2 जो हमारे कंडक्ट करेंगे वो ये हमारी एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ में काम करेंगे. फिर इंडक्टर RL लोड है, इंडक्टर की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से आपके T1 T2 यहाँ पर काम करेंगे. कहाँ तक काम करेंगे? 2 पाई प्लस, सॉरी दिस इज़ अल्फ़ा. ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा, और यहाँ से आपका थायरिस्टर T1 T2 कंडक्ट करेगा. जो आपकी नेगेटिव हाफ वेवफॉर्म शुरू हो गई यहाँ पे पाई से, बट क्योंकि हमने क्या किया, नेगेटिव हाफ में आपके थायरिस्टर क्या है, T3 T4 कंडक्ट करने चाहिए. ठीक है. नेगेटिव हाफ के लिए आपके थायरिस्टर T3 T4 फॉरवर्ड बायस होंगे. जब T3 T4 फॉरवर्ड बायस होंगे, उन्हें जब हम ट्रिगर करेंगे तभी तो टर्न ऑन होंगे. टिल देन द थायरिस्टर्स T1 T2 विच वेयर ऑन will work in reverse direction as we have inductor across the load, and at pi plus alpha जहाँ पर हमारे थायरिस्टर्स T3 T4 ट्रिगर होंगे अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, वहाँ तक आपके थायरिस्टर T1 T2 कंडक्ट करेंगे. फिर आपका यहाँ से T3 T4 कंडक्ट करना शुरू करेगा और फिर ये कंडक्ट करते रहेंगे यहाँ तक T3 T4. फिर आपकी नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, T1 T2 फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, लेकिन कब तक वो टर्न ऑन नहीं होंगे, जब तक हम पाई प्लस अल्फ़ा फिर से नहीं देंगे. तो हमारा पाई, 2 पाई और 2 पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ पर हम थायरिस्टर T1 T2 को टर्न ऑन करेंगे यहाँ पे, और T1 T2 हमारे काम करेंगे. ठीक है. सो इन शॉर्ट, इफ़ वी सी थॉरली द वेवफॉर्म, वी हैव द आउटपुट इन reverse direction, that we are getting the output in positive in
फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेट्स रिकैप वंस मोर because this one is a little bit to be understand what is happening. Again this is your positive half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके क्या होते हैं, T1 T2 फॉरवर्ड बायस होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा है अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो वी विल प्रोवाइड गेट पल्स आफ्टर अ डिले ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारे यहाँ, तो प्लस 90 डिग्री हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने T1 T2 को ट्रिगर किया। जब T1 T2 को ट्रिगर करेंगे तो हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इस आउटपुट वोल्टेज की। ठीक है, हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो यहाँ से मिलना शुरू होगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है, सॉरी ये पूरा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जब T1 T2 हमने ट्रिगर किया तो भाई कंडक्ट करेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पाई पे क्या है आपकी, ये पाई आ गया ना, पाई यहाँ पे। तो पाई पे आपका क्या है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड हो गया अक्रॉस द T1 T2। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड हो गया, तो यहाँ पर कौन फॉरवर्ड बायस होंगे, T3 T4। बट T3 T4 आपके कब तक टर्न ऑन नहीं होंगे, जब तक हम पाई प्लस एल्फ़ा पे उन्हें हम गेट पल्स नहीं देंगे। अब ये नेगेटिव हाफ में है। अब नेगेटिव हाफ के लिए हमारा जो ग्रेटर देन 90 होगा वो इस हाफ में ना होकर अब इस हाफ में चला जाएगा। तो प्लस 90 हमारा कहाँ होगा भाई, हमारा ये 180 और ये भी पूरा 180। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है 180, फिर यहाँ पे हमारा 270, यानी प्लस 90 अगर हम करेंगे 270, और 270 से कुछ ज़्यादा ही हमारा होगा। तो कुछ ज़्यादा हमारा होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोग T3 T4 को टर्न ऑन करेंगे। जब T3 T4 को यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे तो हमारे टर्न ऑन करने का मतलब ये है ट्रिगर करेंगे। टर्न ऑन तो यहाँ पे ही हो गए थे, कहाँ पे पाई पे ही हो गए थे, क्योंकि उन्हें हम वो फॉरवर्ड बायस हो गए थे। बट टर्न ऑन नहीं थे क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई भी गेट पल्स नहीं था T3 T4 के लिए। तो यहाँ पर पाई प्लस एल्फ़ा पे हमारा गेट पल्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारे T3 T4 काम करना शुरू करेंगे, और T3 T4 हमारे काम करते रहेंगे कहाँ तक, 2 पाई प्लस एल्फ़ा तक। अब क्या है, आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई पे। अगेन T1 T2 इज़ नॉट ट्रिगर्ड एट, दिस विल बी ट्रिगर्ड अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो समवेयर हेयर। तो यहाँ पर जब ट्रिगर किए जाएंगे तो यहाँ पे आपको T1 T2 से आपको आउटपुट मिलना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये वाला, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ T3 T4 इज़ वर्किंग। यहाँ पे हमारा T3 T4 is working for some duration over here that we have considered in previous waveform. So the output voltage will vary like this over here and we are getting, तो यहाँ पर देखिए पहले आपके करंट डिक्रीज़ कर रही है, तो डिक्रीज़ करने की हम बात अभी नहीं करेंगे। तो जब T1 T2 काम करेंगे हमारे टर्न ऑन होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे और उनको ट्रिगर करेंगे, तो हमारी करंट क्या होगी, ग्रेजुअली राइज करेगी। ठीक है, वो इसमें स्टोर होगा चार्ज इंडक्टर में, फिर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, फिर स्टोर होगा, फिर रिलीज़ करेगा। जब T3 T4 हमारे आ जाएंगे फिर स्टोर होगा, फिर रिलीज़ करेगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आपको जो पहली वेवफॉर्म मिल रही है वो रिलीज़ होने की इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके T3 T4 आप पहले से काम कर रहे थे। इट वॉज कंसिडर्ड ओवर हेयर इन दिस वेवफॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक वी नॉट एंड आई नॉट विल बी क्लियर ओवर हेयर, एंड आई एस इज़ वॉट, दैट T3 T4 वॉज वर्किंग, दैट वी आर गेटिंग नेगेटिव, फिर T1 T2, फिर T3 T4, फिर T1 T2, फिर T3 T4, इस तरीके से हमें सोर्स करंट मिलेगी। अब ड्रॉप अक्रॉस VT1 एंड VT2, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। ड्रॉप अक्रॉस VT1 एंड VT2 यानी कि ड्रॉप अक्रॉस द थायरस्टर T1 एंड T2 कैसे, अभी हमने क्या कहा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 90, तो हम जो ट्रिगर कर रहे हैं वो 90 के ऊपर कर रहे हैं ना ट्रिगर। तो जहाँ पर हम उसको फायरिंग पल्स देंगे उसके पहले का जो अप्लाइड वोल्टेज हमारा क्या होगा, ड्रॉप में तो आएगा। फिर जहाँ पे हमने ट्रिगर किया और जहाँ तक पाई तक ये गया तो ये हमारा क्या है, ड्रॉप नहीं होगा। अब क्योंकि इंडक्टर RL लोड था, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी थी, तो हमारे जो थायरस्टर्स हैं वो क्या अभी भी इस रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। तो पहले देखिए वहाँ पर अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो नेगेटिव हाफ में आपका ड्रॉप मिल रहा था VT1 VT2 के अक्रॉस, ठीक है, बट हेयर नेगेटिव हाफ में आपका ड्रॉप कम मिल रहा है। कहाँ तक मिल रहा है, सिर्फ यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर VT3 एंड VT4। ठीक है, so this is all about the
सिंगल फेज PCR विद RLE लोड अल्फ़ा लेस देन 90 अल्फ़ा ग्रेटर देन 90। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोनों की, ठीक है, तो जो है SCR मतलब आपका जो है सॉरी, जो SCR आपका है इट इज़ सब्जेक्टेड टू वर्क एज ए रेक्टिफायर फॉर लेस देन 90 एंड वर्क एज अ इन्वर्टर फॉर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज नेगेटिव बट करंट पॉजिटिव। देखिए वोल्टेज नेगेटिव बट करंट पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव एंड करंट पॉजिटिव। तो अगर हम 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात करें तो व्हाट हैपन इन दैट केस, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमारा क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में V0 माइनस V0, I0 and minus I0. So what happening in alpha less than 90 degree, V0 is positive and I0 positive. These that means it will work in quadrant 1, ठीक है, बट अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 के लिए हमारा क्या है, V0 नेगेटिव हो रहा है और I0 हमारा स्टिल पॉजिटिव रह रहा है। देखिए V0 हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, I0 हमारा पॉजिटिव है, मतलब मैक्सिमम आपका क्या है, नेगेटिव है, और I0 आपका हमेशा पॉजिटिव है, दैट इट विल ऑपरेट इन क्वाड्रेंट 4, ठीक है, दैट इज वी कैन से आवर रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कैन वर्क एज अ इन्वर्टर in quadrant 1 and quadrant 4 if we select the value of alpha less than 90 degree and greater than 90 degree. That is, we can say this is a 2 pulse or 2 quadrant phase control rectifier, ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में हमारा काम कर सकता है, ठीक है। यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं डुअल कन्वर्टर। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हेन we have this topic dual converter, how we'll make dual converter with the help of 2 PCRs, parallel combination of 2 PCRs, ठीक है। So for today let's stop over here and keep learning, as this topic is very important. Please read it at least 2 times, and if we have any query regarding this topic, this is very very important, and ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए हमारा वेव फॉर्म क्या होगा और उसका बिहेवियर क्या होगा सर्किट का, ठीक है। तो जो बिहेवियर है सर्किट का वो ये होगा, और हमें ये एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कुछ आपकी क्वेरीज़ हों तो उन्हें प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 फेज सर्किट और डुअल कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम करिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस अपने पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।